Okay, guys, so let me continue from the same. So I hope till now everything is clear. I can understand it's not Yes. that interesting, but we'll see. अभी just introduction part है. Okay, guys, so we were discussing about the definition of your personality. So it was the Gordon Allport, the name of the scientist, who initially proposed the definition of your psychology, and it explained the psychology as the sum total of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites, and instincts of the individual, and the acquired disposition and tendencies acquired by the experience. तो ये इतना बड़ा Your voice is not clear. okay. ये शायद आपका इशू होगा मैम। हिमांशु का आवाज वॉइस हमारा वॉइस क्लियर क्लियर आ रही है। क्लियर आ हिमांशु रही भाई है। आपकी हाँ, बिल्कुल clear क्लियर जिसको आ भी रही है, बिल्कुल ओके क्लियर सो आ रही है। जिसको भी इशू आ रहा है क्लियर नहीं आ रही सो दे कैन रीजॉइन द सेशन डोंट वरी actually today I was trying to connect the session through my Chromebook, but due to some issues I was not able to share my screen, and also I was not able to record the whole session, so I again shifted to the system. So from tomorrow, or you can say after 2 or 3 days, I will try to shift to another app where we can use other features as well, and also we will continue for the long session. But yes, मैं Zoom में 45 minutes में disconnect हो जाता, so it's okay, fine. ये जो भी है. So Gordon Allport was the name of the scientist जिसने definition दिया था. So just leave it. You have to remind the last definition which he revised, and it says the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine the individual characteristics, behavior, and thought. तो ये क्या कह रहा है? So dynamic. I hope everyone knows the meaning of the dynamic word. So dynamic means जो कभी भी एक जैसा नहीं होता, मतलब बदलता रहता है. ठीक है, जो फिक्स नहीं होता. वी हैव स्टैटिक एंड यू कैन से डायनामिक. स्टैटिक्स मींस जो हमेशा फिक्स रहता है, एंड डायनामिक जो कभी भी फिक्स नहीं होता. सो द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मींस जो भी मेरी क्वालिटीज हैं, जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, जो भी मेरा बिहेवियर है, जो भी मेरे एटीट्यूड है, उसको एक ऑर्गेनाइज किया है मैंने. ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मेरी क्वालिटीज हैं उसको मैंने डायनेमिक ऑर्गेनाइज किया है विद इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर, ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स. ठीक है, ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है क्या, द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट. ठीक है, यही क्या करेगा, मेरे को डिफाइन करेगा कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरे बिहेवियर क्या है, एंड व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस. So that is the basically definition for emphasizes on the following main aspects. Okay, so then the scientist Gordon Allport, so उसने क्या किया, कुछ कुछ main aspects बताए हैं कि जो हमारी personalities होती हैं, तो उसके क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए. सो यहाँ पे फर्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशन. सो एज आई टोल्ड यू, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इट रेफर्स टू द आइडिया दैट पर्सनैलिटी इज अ होल. ठीक है, so it is the individual in totality, not a few aspects of the individual. Thus personality is specific and unique for each and every individual. तो ये वही कह रहा है, organizations में जो भी हमारी personality है उसको पूरे को एक में organize कर देना, that is your organization. ये सबकी अलग अलग होती है और specific होती है और unique होती है सब चीज की, क्योंकि हमारे सबके अलग interest होते हैं, अलग behavior होते हैं, उसी को organize कर दिया तो यही हमारा organization हो जाएगा. Then the second thing is dynamic. So in dynamic, it indicates that personality is not static but dynamic in nature. तो आई होप कि ये सबको पता ही चल गया होगा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या है, स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है. तो आई होप इट इज क्लियर. यस। हिमांशु भाई ये डायनेमिक हिंदी में लिखा हुआ है गतिशील. गतिशील, हाँ गतिशील वही हो गया ना, जो गतिशील मतलब यार, मतलब जो हमेशा हाँ कंटिन्यू उसमें रहेगा, मतलब फिक्स नहीं होगा कभी भी. हाँ. ठीक है, तो डायनेमिक वही होता है. तो डायनेमिक क्यों है, डायनेमिक इसलिए है क्योंकि हमारे क्या होता है, जैसे हमारे इंटरेस्ट हो गया, मेरा बिहेवियर हो गया, या मेरी कुछ भी क्वालिटीज होगी, ये क्या है, स्टैटिक नहीं है, गतिशील है. क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर हमेशा चेंज होता है एज पर माय एज. जैसे अभी अगर एज भी नहीं, छोड़ो एज को छोड़ो, डायनेमिक क्यों है, सपोज कि अभी मेरे को सपोज अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि पहले मुझे, जब मैं 12th में था तो मुझे इंजीनियरिंग करने का बहुत शौक था, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, घर वालों ने सब कुछ मुझे बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने इंजीनियरिंग करनी थी. सो आई डन माय इंजीनियरिंग.
but now you can see I am studying psychology and I am teaching as well. So this is my behavior which is dynamic, right? कि पहले मुझे कुछ और पसंद था और अभी मुझे कुछ और पसंद है, और क्या पता आने वाले 2-3 साल बाद मैं कुछ और पढ़ने लग जाऊं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डायनेमिक हो गया मेरा बिहेवियर, मेरे इंटरेस्ट क्या हो गए, डायनेमिक हो गए। कभी भी ये फिक्स नहीं हो सकते, हम नहीं कह सकते कि मेरा जो बिहेवियर है, मेरे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होंगे, इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं। अगर मैं इसको रीड करूं, सो इट इज अडेप्टिव एंड सेंसिटिव टू द कंटेक्स्ट एंड द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, अडेप्टिव होता है और सेंसिटिव होता है। जो हमारा नेचर, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमारी चीजें होती है, क्या होती है, सेंसिटिव होती है और अडेप्टिव होती है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, राइट? तो जो पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट पे बेस करते हैं। ठीक है, सपोज कि अगर मैं अभी गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे कुछ अलग इंटरेस्ट हैं। अगर मैं सिटी में शिफ्ट हो गया तो मेरा डेफिनेटली मेरे पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट? अगर कभी भी देखना तो जो गांव के लोग हैं, अगर वो सिटी में शिफ्ट कर जाएंगे तो शुरू में उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिटी पर्सन। ठीक है, तो क्या हो गया, वो जो हमारा बिहेवियर था ये डायनेमिक हो गया और डिपेंड किस पे किया, एनवायरनमेंट पे डिपेंड किया। ठीक है, so the next aspect is your psychophysical system. Psychophysical system देखो, जैसे psycho means your mental thinking process, cognitive process, and physical is your body, बायोलॉजिकल। तो इन दोनों को वर्ड को हमने एक साथ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब हम बॉडी, फिजिकल प्लस अपना साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट इंक्लूड बोथ द फिजिकल और बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। तो ये क्या होता है, दोनों चीजों को इंक्लूड करके रखता है। Then the characteristics, behavior, and thought refers to the trait which indicates relatively stable and consistent way of thoughts, emotional responses, and behavior. तो ये क्या करता है, characteristics क्या करता है, behavior और thought, कि ये indicate करता है कि हम कैसे stable हैं थॉट के प्रोसेस में, इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या है मेरे, और मेरा बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं, मैं अभी दोबारा से मैं बता देता हूँ, कनेक्ट करके बता देता हूँ आपको। तो पहले हमने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, पर्सनैलिटी के बारे में सीखा, पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर क्यों आती है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय द गॉर्डन एल्पोर्ट। एंड देन गोल्डन एल्पोर्ट ने वो क्या कहता है, मेन एस्पेक्ट बताए थे कि जो डेफिनेशन उसने दी है उसके मेन मेन एस्पेक्ट क्या है, डेफिनेशन में मेन मेन चीजें क्या है। फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन is there in every human being, and the dynamic behavior and the psychophysical system and the characteristics of behavior and thought, ये सब चीजें होती हैं जो एक पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। ठीक है, सो इन द सिमिलर वे, अब ये कह रहा है कोई दूसरा साइंटिस्ट था, वॉल्टर मिशेल स्टेट्स पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशन दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ईच इंडिविजुअल्स एडेप्टेशन टू द सिचुएशन ऑफ हिज और हर लाइफ। ये सेकंड कोई अलग डेफिनेशन है जो दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी, गोली मारो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। एंड हियर लेट अस नो अ लिटिल मोर अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड स्टेट्स। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर कि पर्सनालिटी में ट्रेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं। सो ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं हमारे internal disposition or preference to act, thus it focus on differences between individual, why different individual different in their thoughts, feelings or behavior। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, थॉट से डिफरेंट हैं, एक दूसरे की फीलिंग हमारी डिफरेंट होती है, एक दूसरे का बिहेवियर हमारा डिफरेंट होता है, जब इनके बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेट्स व्हिच कम्स अंडर पर्सनालिटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टेट्स, तो स्टेट अप्रोच करता है, रेफर करता है टू द डिफरेंसेस विद इन द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, खुद के अंदर होते हैं। जैसे व्हाई द सेम इंडिविजुअल थिंक, फील और बिहेव डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशन। समझ में आया? जैसे ट्रेट ये बता रहा है कि हम एक दूसरे से अलग क्यों है, थिंकिंग में और हमारे फीलिंग में, बिहेवियर में। लेकिन स्टेट जो एक वर्ड है, जो हमारा एक पर्सनालिटी का जो हाँ, ट्रेट्स एंड स्टेट्स है, तो स्टेट क्या बताता है, स्टेट ये बोलता है कि हम खुद से डिफरेंट क्यों हैं। सपोज कि मैं अभी आज बहुत खुश हूं और सेम कंडीशन में, सेम एटमोस्फेयर में, सेम सारी चीजों में मैं दुख हो जाऊंगा, कल क्या पता मेरा अलग मूड हो। ठीक है, या फिर मेरा बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मैं कल ही सेम चीज को अगर मैं खराब बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा। तो ये रेफर करता है डिफरेंसेस विद इन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर, खुद के अंदर जो डिफरेंसेस हम क्रिएट करते हैं अपनी बिहेवियर को लेके, फीलिंग्स को लेके, थॉट को लेके, उसको हम बोल देंगे स्टेट। एंड ट्रेट में हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो ये इसमें आ जाता है।
So then, yes, so research has generated evidence for the biological basis of the personality traits. Example, छोड़ो, अच्छा ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है. So genetic factor, जो physical factor में आता है, हमारा brain structure and neurochemistry have been found to play important role in personality. ठीक है, जो genetic factor होते हैं हमारे brain structure जो हमारा होता है, neurochemistry जो हमारे mind में होती है, वो क्या होते हैं, बहुत ही important रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी में. लेकिन neuropsychology, which studied how the brain relates to the specific psychological process and behaviors, genetics study the biological basis of our behavior, having ओके, तो ये यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि ये जो न्यूरोसाइकोलॉजी होती है, न्यूरोसाइकोलॉजी में के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे कि हमारा जेनेटिक फैक्टर्स कैसे डिपेंड करता है, ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करता है, न्यूरोकेमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये हम पढ़ते हैं सिर्फ. हिमांशु भाई ये स्क्रीन रुकी हुई है क्या? ओके गाइस, बड़ी लेट बताया यार हाँ, तुमने. बता दिया नहीं करो शायद कुछ मुझे लेकिन. लगा. ओके देन फाइन. सो यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल कुछ इन्होंने, बस हम पढ़ ही रहे हैं नॉर्मल नॉर्मल, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं. तो अभी यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट ने बोला ऐसा, जेनेटिक फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोकेमिस्ट्री, ये भी सब क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पर्सनैलिटी में. बट दिस विल बी स्टडीड अंडर न्यूरोसाइकोलॉजी. लेकिन हम अभी न्यूरोसाइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन वो उसमें अलग से पढ़ेंगे न्यूरोसाइकोलॉजी में. So here genes are also responsible for producing biological differences in personality. ठीक है, these differences are called temperament. तो genes जो हमारे होते हैं responsible होते हैं एक producing biological differences personality. तो इसको हम बोलते हैं temperament. ठीक है, जो हमारे genes होते हैं वो क्या produce कर रहे हैं, biological difference. तो ये आ जाएगा हमारा किसके अंदर, personality के अंदर. इसको हम बोलते हैं temperament. तो यहाँ पे हमारा हो गया. So we have three main types of temperament as described by Buss and Plomin, are actively level, emotionality and sociability. तो ये हमारे तीन types होते हैं हमारे temperament के. तो इसको देख लेना. So now we have aspects of personality. What are the aspects of personality? So from the above discussion, it can be said that personality includes the physical, biological, psychological as well as social aspect. ये हमें पता चल गया कि हमारी जो personality होती है, physical भी होती है, biological भी होती है, psychological भी होती है और social aspect भी उसमें important role play करते हैं. So biological aspect क्या होते हैं? Physical appearance of an individual, कि how the particular individual looks or what are the physical appearance of an individual. Then psychological processes and hormones which have an effect on the personality, on the behavior of the individual. तो जैसे biological aspect बता रहा है कि biological aspect क्या होता है personality के अंदर, तो biological word से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, physical हमारे उसके बारे में बताएगा कि हमारी physical appearance क्या है, या फिर हमें जो हमारे genes से, heredity से मेरे को biological क्या difference create हुए हैं जो मेरी personality को develop नहीं होने दे रहे हैं, या फिर personality में एक important role play कर रहे हैं. तो वो भी यहाँ पे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा. देन वी हैव टेम्परामेंट, जो हमने भी पढ़ा, टेम्परामेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग वंस पर्सनालिटी. ठीक है. देन साइको सोशल एस्पेक्ट. तो यहाँ पे साइको सोशल एस्पेक्ट होता है, सॉरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल. ओके, सो साइको सोशल मतलब साइको प्लस सोशल, कि सोसाइटी प्लस में योर मेंटल एबिलिटी या फिर योर थिंकिंग प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का. एंड हाउ वी विल लर्न. सो इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी किसी का इंटरेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, राइट. तो जो भी हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होते हैं वो सोसाइटी से तो होते हैं ना डेवलप. तो जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं, जैसे जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल मेट्स होते हैं, जैसे हमारे ट्यूशन मेट्स, बैच मेट्स, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है वही हमारे अंदर क्या करता है, इंटरेस्ट एक डेवलप करता है. तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं साइको सोशल एस्पेक्ट. So these interests are acquired and may be influenced by the parents or peer group or the other situational factors. ठीक है, तो interest of the individual. So then we have abilities of the individual also have an impact on his personality. तो abilities जो individual की क्या क्या abilities होती है वो भी personality में एक important role play करती है. Then sociability of the individual, कि how the person is socially interactive with the other individuals, which refer to the relating and interacting with others in a social environment. तो ये भी क्या करती है, हमारी personality का एक psychosocial aspect है. Then we have emotional characteristics of the individual shape the personality of the individual. Emotional characteristics भी हमारे क्या करते हैं, important role play करते हैं. Psychosocial aspect है ये भी किसका, personality का. देन टिपिकल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, जो हमारे टिपिकल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं ये भी क्या आ जाएंगे, हमारे साइकोसोशल एस्पेक्ट हो जाएगा किसका, पर्सनालिटी का.
ठीक है. So till now we have covered the introduction part, the introduction of individual differences and the personality, the definition of personality, and the important aspects in personality. And then we have learned about the temperaments. What are the temperaments? These are the genes which are responsible for producing biological differences in the personality. Temperament कौन कौन से होते हैं? एक हमारा activity level, emotionality and sociability. ठीक है, ये हमारे क्या क्या है, तो ये हम टेम्परामेंट के अंदर आते हैं. सो इसके बाद हमने पढ़ा है कि एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं और साइको सोशल एस्पेक्ट होते हैं. ठीक है, सो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है. इसके बाद हमारे शुरू हो जाएगा द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी. व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी? So till now I hope the definition and the concept is been cleared. If anyone have any doubt, they can unmute themselves and you can ask anything. I will be more than happy to answer. Anyone? Yes, no, maybe? No, Himanshu. Okay, then good. So here in the theories of personality part, so we will learn the different theories for the different personalities. You can say कि अलग अलग जिस अब होता है क्या है ना, हमेशा आप कोई भी बुक पढ़ना, ठीक है, मैं ऐसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, कोई भी बुक पढ़ना, आप साइकोलॉजी में, मेनली साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, बाकी तो छोड़ो. आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हमने पढ़ी थी, स्टैटिक्स हमने पढ़ी थी, स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, सॉरी, और अभी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं. तो ये सब चीजें क्या है ना, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जैसे हम अभी सेशन में सपोज अगर हम 20 लोग हैं, हम 20 लोग अभी हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद अगर हम मास्टर डिग्री करेंगे साइकोलॉजी में, फिर पीएचडी करेंगे, और उसके बाद मेरा मन करेगा कि नहीं यार मैं खुद से ऑब्जर्व करता हूँ, डेटा कलेक्ट करता हूँ और अपनी एक थ्योरी बनाता हूँ कि नहीं, लोगों का यही परसेप्शन होता है, ऐसे ही लोगों का दिमाग काम करता है. तो ऐसी अलग अलग साइंटिस्ट पहले के जो थे, उन्होंने ऐसी अपना ऑब्जर्वेशन की, डाटा कलेक्ट किया और अलग अलग अपनी थ्योरीज डेवलप की. उन्होंने बताया कि एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, the human behavior will work under this theory. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही चीज है, देखो पर्सनैलिटी हमें पता चल गई, यही सब चीजें उन्होंने, हर साइंटिस्ट ने बताई है, हर रिसर्चर ने बताई है, लेकिन उन्होंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है. उन्होंने एक प्रोसेस बता दिया है कि ऐसे ऐसे हम काम करते हैं, ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, ये हमारी सेकेंडरी नीड्स होती हैं, ये ऐसे हमारा डेवलपमेंट करता है, एटीट्यूड ऐसे डेवलपमेंट होता है, और ये थ्योरीज होती हैं. तो अलग अलग थ्योरी हम पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट जो जिसने भी दी है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने. So under this theories, personality has also been explained and understood from the viewpoint of the major psychological theories such as psychoanalytic, behavioral and humanistic theories. तो यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे ये सब चीजें. Okay. So we will now consider the various theories of personality, including the contemporary trait theories and biological theories of the personality. तो छोड़ो ये सब. So first, the important one. Himanshu, Yes. I suggest that we start with the theories tomorrow because अगर आज start करेंगे ना तो Okay कल then. link टूट जाएगी. Okay then, So guys. Yes, actually I was thinking about the same, but मैंने सोचा हाँ, कि फिर पहले यहाँ ऐसे पूरी theories mix हो जाएगी. ओके गाइस, देन एक काम करना, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक लाइन तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसमें से, लेकिन मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूँ, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, कितना भी बता दे, कितना भी एक्सप्लेन कर ले, जब तक आप खुद से एक बार गो थ्रू नहीं करोगे पूरे इस पूरा जो स्टडी मटेरियल है, अगर एक बार आप पढ़ लोगे खुद से, तो दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू. यू विल बी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फर्दर टॉपिक्स इन द गुड मैनर, आई थिंक. तो रात को आप पढ़ लेना एक बार, या मॉर्निंग में पढ़ लेना, इवनिंग में पढ़ लेना, एक बार जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लेना, देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज. So anyone, any doubt, any questions, any queries? No. No? नहीं. Okay guys. So we have 19 people. So बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं आज. So I am not sure who all are joined today. So जो भी newcomers हैं, any doubt, any queries? कोई suggestion यार, कोई भी suggestion? कोई Hi. suggestion हो, कुछ भी? Yes. हाय. Yes, hi. हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि ये क्लास का कंटिन्यू होगा, मतलब Yes. इस वीक में. Yes. ओके, सो मैं आज ही ज्वाइन किए हूँ ये क्लास. Okay. Okay. तो आपका सिर्फ बीपीसीसी 103 का क्लास ही हो रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी हो रहा नहीं है? एक्चुअली 2 कोर्सेज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं. सो फॉर देम यू कैन रेफर टू द चैनल
and you can anytime check the videos for the previous sessions, and you can revise from there. Okay, is it And up on YouTube? yes, is it's on YouTube. So are you there on the WhatsApp group? Okay. I'm on a group, IGNOU's group, Kolkata's group. So someone had sent me this link. Okay, so you can anytime you can text over there, and you can ask for my YouTube channel link. Someone will definitely share with you, and from there you can find all the previous Okay. sessions. And currently we are covering the BPCC 103, and after that we will see, जैसे भी लोग recommend करेंगे वो subject हम cover कर लेंगे इसके बाद. अच्छा, ये जो Statistics का क्या हो गया है? स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई स्टैटिस्टिक्स. हाँ, Sorry. स्टैटिस्टिक्स का मैं एक रिवीजन Yeah, सेशन लूंगा. statistics. स्टैटिस्टिक्स अच्छा. कल ही खत्म हुई है. अच्छा, ये बीपीसीसी ये फर्स्ट ईयर के अच्छा लिए है अच्छा, तो क्या? वो यस. ओके. यस, कोई कुछ बोल रहा था. यू कैन कंटिन्यू. हाँ, एक तो वो स्टैटिस्टिक्स का सेशन YouTube पे है ना यस आपका? यस, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डिफरेंट Okay, okay, कोर्सेज के लिए. यू कैन चेक. सब आपको great. सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी. फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ देखने के बाद कोई डाउट हो, यू कैन टेक्स्ट एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और एनीवेयर. सो आई All विल. right. Thank you so much. Yeah. यस. सो एनीवन अच्छा, एल्स? असाइनमेंट के लिए कुछ रेफर करना जरूरी है क्या? किसमें रेफर करना? असाइनमेंट्स लिखने के लिए. असाइनमेंट्स लिखने के लिए रेफर करना? अब रेफर तो आप ये इंग्लिश स्टडी मटेरियल को रेफर कर लो. सो आई ओके. थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि अगर इसको रेफर करोगे तो आपका एग्जामिनेशन भी प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. और वैसे अगर आप कहीं अगर गूगल से रेफर करोगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें. साइकोलॉजी ऐसा है कि खत्म ही नहीं होगा कभी. इतने हाँ, सारे वही इतने मैं सारे बहुत. लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कुछ इतना बोल रखा है कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा. सो इट्स बेटर you can use the IGNOU material and prepare your assignments. It will help you for the examination point of view as well. So any other questions? Anything else? नहीं, बस और कुछ नहीं? नहीं. Okay guys, then thank you for joining the today's session. थैंक यू सो Thank you, मच. Manshu, for the session. You all have a great day. Thank you. Good night. गुड नाइट. गुड नाइट Manshu. सर. Guys, भाई सर मत बोलो यार. You can call my name itself. That will be fine. ये तुम्हारा तो तुम बैचमेट ही सर ही हो हो यार. यार. अरे सर्वर मत बोलो यार. ठीक है चलो, कोई नहीं. ठीक अरे है. नहीं, सच में आप सर ही हो ना. मतलब एक रिस्पेक्ट आ जाती है ना यार तुम्हारे लिए, मतलब एक दिल से आ जाती है, तो इसलिए सर अच्छा लगता है हाँ बोलना. सर, हार्ट की. अरे भाई यार, ये सब बातें मत बोलो. ऐसा जरूरी नहीं है सर बोल के रिस्पेक्ट आती है. हाँ. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर बोल के रिस्पेक्ट आती है. रिस्पेक्ट वैसे भी आ जाएगी बिना सर बोले भी. नहीं नहीं, एक मतलब कर्टेसी टाइप में होता है ना कि तुम मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो सारी चीजें ओके और देन, बड़े ठीक सही है. तरीके से, तो ये ठीक है अच्छा ठीक लगता है ठीक है. इट्स ओके, फाइन. है. ठीक है ब्रो, गुड नाइट. Oh. Do you take this class every day? Yes, I am trying my best, but Okay. as I am working as well, so I have some office task as well. अभी मैंने पता है ऑफिस मेरा चल रहा है 12 बजे तक चलता है. 10 to 11 मैंने पावर कट बोला है और मैंने क्लास का सेशन लिया है. ओके. So थैंक it's यू. okay. So ये maybe भी ठीक है. from next week Okay. onwards, Thank you. मेरी most probably timing change हो जाएंगी. I will be scheduled for the evening shift. So that time I will try. अभी तो बस मजबूरी है कि इस टाइम लेनी पड़ रही है classes. But जैसे ही मेरी shift timing change हो जाएंगी तो हम evening में session लेंगे. I hope all are क्या कहते हैं comfortable होंगे evening session के लिए around 5, 6, 7 इसके आसपास. ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं. आप कोई नहीं. इतना एफर्ट्स ले रहे हैं तो फिर नो प्रॉब्लम. Okay guys, thank you. या, थैंक यू. So good night guys. Bye Thank bye. you, Manshu. Good night. Okay. गुड नाइट सर.